Hello student, today I am going to teach you Home Science chapter number 6 part 1. Environment. You have noticed over the year that the places where there used to be trees, farms, water bodies, now there are bungalows, houses, industries and multiplexes. Trees are being cut to constructed houses. The number of vehicles on road has increased. If you look around, you can see smoke and dust in air, and these are increasing day by day. Apart from this, you must have smell the peculiar fuel odor from routine garbage, high level of noise from vehicular traffic, especially in cities. In small town and villages too, the environment has degraded due to increased in number of vehicles and unsafe disposal of water. Do you know all this cause a lot of health problem? How are you affected by them, and can you do something about it? Yes, you can. It is only a matter of thinking, creativity, and suggesting ideas to solve this problem. In this lesson, let us try to find answer to this and many more similar questions. So students, जैसे यहाँ पर मैंने रीड किया कि वायु, जल, भूमि और जो वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु और मानव सब मिलकर पर्यावरण बनाते हैं, जिसका नाम जिसे इस लेसन का नाम है एनवायरनमेंट। और प्रकृति में इन सब की मात्रा और इनकी रचना कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित है कि पृथ्वी पर एक संतुलन जीवन चलता रहे, किंतु आज हम इस संतुलन को खोते जा रहे हैं और जो है प्रदूषण जो है बढ़ता जा रहा है ना। हम देखते हैं कि पहले हर जगह पर हमें ट्रीज नजर आते थे, फार्म्स नजर आते थे और झरने और वाटर बॉडीज ये सब नजर आते थे, लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, सब जगह में व्हीकल्स है, गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ियों का धुआं और बहुत सारी जो है ऐसी चीजें नजर आ रही हैं। हम ज्यादातर देखते हैं कि जहाँ पहले पेड़ पौधे थे, खेत थे, जल थे, लेकिन आज वहाँ पे क्या हो गया है, बड़े बड़े बंगले बन गए हैं, मकान बन गए हैं और इंडस्ट्रीज बन गई हैं। फिर मकानों को बनाने के लिए, घरों को बनाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। सड़कों पर जो है बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं और ऐसे हम देखते हैं कि हमारे आजू बाजू जो है वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एयर पोल्यूशन हम जिसको कहते हैं। और धूल, हर जगह धूल नजर आ रही है और दिन प्रतिदिन ये बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसके साथ में भी हम देखते हैं कि जो रोड पर इतने कचरा जो है, गार्बेज सब जगह पर हमको नजर आता है, जिससे बहुत स्मेल आता है, बदबू आती है। और गाड़ियों का जो आवाज है, जो नॉइस पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और पहले तो सिर्फ शहरों में हमें नजर आता था, लेकिन अभी गाँव में भी जो गाड़ियां जो है बढ़ गई हैं, वहां पे गाड़ियों की मात्रा या गाड़ियां बहुत ज्यादा मात्रा में चलने लगी है। सब बोल सकते हैं असुरक्षित हो गया है। पर्यावरण जो है या एनवायरनमेंट दिन प्रतिदिन जो है दूषित होता जा रहा है। अब ये सारी समस्याएं, क्या हम इसका कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं। हम इस जो लेसन में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम इन जो पोल्यूशन है इनको कैसे हम इनका सॉल्यूशन निकालें। What is a pollution? This is the first topic. So pollution is the additional of any substance to the environment in exercise to what is normally present, thereby making the environment impure. River water gets polluted and become unsafe for human consumptions. Air get polluted due to smoke and fumes. All this make it difficult for us to breathe. You know that smoke is emitted by automobiles, factories and the
chulas, the atmosphere and the soil also get polluted due to industries, human and animal waste. In addition to this, noise pollution, polluted and atmosphere. What are the pollutants? The substance which cause pollution are known as pollutants. It may also be defined as a constituent in the wrong amount, at the wrong place or at the wrong time. A pollutant is harmful to our health. When you wash clothes or bath in the river, the dirty and soap are released into water and cause pollutions. They make the water dirty or unsafe for drinking. Can you give some more example of pollutants? Yes, you are right. Dust, dirty, garbage, chemical and industrial wastes are a few example of pollutant. Can you tell how to do they pollute? What is the pollution? प्रदूषण क्या है? पर्यावरण में किसी पदार्थ की मात्रा का उसकी सामान्य मात्रा से अधिक हो जाना और उसके कारण पर्यावरण का दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। नदी का पानी प्रदूषित होता है और मानव जो चीजें इस्तेमाल करते हैं उपभोक्ता के लिए असुरक्षित हो जाता है। धुआं और धूल के कारण वायु प्रदूषित हो जाती है। ये सभी जो तत्व है वो वायु को प्रदूषित करते हैं और मनुष्य के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आप जानते हैं कि वाहनों या जो हम गाड़ियां कहते हैं, फैक्ट्री तथा जो चिमनियों से जो धुआं निकलता है, फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है और ये जो धुआं है वायु को प्रदूषित करता है। औद्योगिक और मानव तथा पशु जो भी है वो वातावरण तथा सारी चीजों को प्रदूषित करते हैं। इसके अतिरिक्त जो आवाजें या ध्वनि जो है उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है। प्रदूषक क्या होते हैं? जैसे पोल्यूटेंट हमने लिखा है, व्हाट आर द पोल्यूटेंट्स। प्रदूषक क्या होते हैं? ये वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण प्रदूषण होता है, उन्हें प्रदूषक कहते हैं, पोल्यूटेंट। इसे गलत स्थान पर या गलत समय पर या गलत मात्रा के संघटक के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। एक प्रदूषक हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब आप नदी में कपड़े धोते हैं या नहाते हैं तो आपके शरीर से जो निकला हुआ मैल तथा कपड़ों से निकला हुआ साबुन नदी के पानी को प्रदूषित कर देता है। ये तत्व पानी को गंदा कर देते हैं तथा इसे मनुष्य के पीने के लिए असुरक्षित बना देते हैं। क्या आप प्रदूषकों के कुछ और उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं? जी हाँ, आप सही हैं। धूल, मिट्टी, कचरा और जो रसायन पदार्थ हैं और औद्योगिक और ये सभी जो है प्रदूषकों के उदाहरण हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये पदार्थ किस प्रकार प्रदूषण फैलाते हैं? ये जो है हम नेक्स्ट देखते हैं। What are pollutant? So this pollutant affect air, water and soil, and therefore the pollutant is category into air pollution, water pollution, soil pollutions, noise pollutions. ये जो प्रदूषण है वायु, जल तथा मिट्टी को प्रदूषित करते हैं या प्रभावित करते हैं। इस प्रकार का जो प्रदूषण है वो अलग अलग भागों में हम बांट सकते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और यहाँ जो लिखा है सॉइल पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।